Hello students, this is Jeetpal Singh from Polo Academy Sangrur ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸਰਕਟ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਿਟਸ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਰਕਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪੈਰਲਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਰਕਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਰੇ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ I ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਓਹਮਜ਼ ਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਓਹਮਜ਼ ਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਡ ਅਪ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈ I1 ਪਲਸ I2 ਪਲਸ I3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 1/R ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/R1 ਪਲਸ 1/R2 ਪਲਸ 1/R3 where the symbols have their usual meaning। symbols ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਟਾ symbols ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ V1 voltage across resistor R1 V1 voltage across R1 V2 ਕੀ ਹੈ voltage across R2 V3 ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ voltage across R3 V total नहीं applied voltage you can say। सेम बेटा I1 की है करंट थ्रू R1 I2 is current through R2 I3 is current through R3 and I is total current of the circuit। in the circuit। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਿਟ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव बेटा ये I करंट जा रहा मैं इत्थे सारा कुछ तुहानूं दिखा रहा इत्थे जाके I1 हो गया क्योंकि ये सर्किट R1 रजिस्टर सी ये R2 रजिस्टर सी ये R3 रजिस्टर सी ये विच I2 चला गया ये विच I3 चला गया बेटा टोटल इकट्ठा दोबारा हो गया अगेन I बन गया। आ चीज़ सैटिस्फाई कर रहे। ठीक है। वोल्टेज जिन्नी आप अप्लाई की वो सारी वोल्टेज ये उत्ते बेटा आप V आ जी अप्लाई की लैट अस सपोज पहले आप R1 R2 R3 सपोज कर लें 10 40 80 ओहम मैं रैंडमली सपोज कर ले
ठीक है जी। 20 वोल्ट आपां सोर्स ला दिंदे हां। चलो नाउ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा अगेन की क्वेश्चन वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 बेटा ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ जी बेटा जी। नंबर 2 की बनता है? नंबर 2 बनता टू फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट मतलब वो की कह रहा आई कड्डन नूं गल करूगा। नंबर 3 बनूगा बेटा टू फाइंड करंट थ्रू R1, R2, R3 मतलब वो की कर रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ I1 I2 ਅਤੇ I3 फाइंड आउट करने कह रहे। 4th क्वेश्चन बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बन सकता है टू कैलकुलेट ये सिर्फ भुलेखा पाने लिए आह ये क्वेश्चन सिर्फ वो भुलेखा पाने लिए पूछ सकता वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3 मतलब वो इनडायरैक्टली V1 V2 V3 पूछ रहा है। ਇਹਦਾ आंसर ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायग्राम चो पता लग जूगा, इनू कड्ढण की जरूरत ही नहीं पैनी बेटा जी अपन। ठीक है तो ये क्वेश्चनस ने जिहड़े आपां अटैम्प्ट करांगे। सब तो पहला तो मैं आही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहुंदा 4 नंबर क्वेश्चन टू कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3। ओबवियसली पैरल दे विच आ चीज़ हुंदी है। ठीक है जी ये आपां नूं पता भी ये चीज़ होऊगी पैरल दे विच। तां जे ये चीज़ है तो R1 दे अक्रॉस किन्ने वोल्ट 20 वोल्ट, R2 दे अक्रॉस 20 वोल्ट, R3 दे अक्रॉस 20 वोल्ट बिकॉज 20 volt is the applied voltage and for a parallel circuit the voltage across each resistor is equal to the applied voltage। उन्हां च कोई वेरिएशन नहीं आउंदी जिवें सीरीज़ दे विच वेरिएशन आउंदी सी। ठीक है जी that's why it is not called voltage divider, it is called current divider circuit क्योंकि बेटा इह करंट डिवाइड हो रहा I दा 3 डिवीजन हो गई I1 हो गया I2 हो गया एंड I3 हो गया। सैकेंड क्वेश्चन टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यदि आंसर दे रहा बेटा तो यदा आंसर की है R1 R2 R3 पता आपां नूं 1/RP का फार्मूला ला देंगे आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी पुट कर दो 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/80 LCM बेटा 1/RP 80 आ गया। 8 प्लस 2 प्लस 1 ये बेटा अपने को आ गया 11/80 पर ये 1/RP है ये आई 11/80। इट इंप्लाइज RP कितनी आजू 80/11 रेसिप्रोकेट कर देंगे बेटा RP इज इक्वल टू 80/11। लो जी ये आप कढ़ ली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस लिख दें इत्थे 80/11 डन। पॉइंट्स कढ़ दो, कढ़नी है नहीं कढ़नी कोई चक्कर नहीं, बस यूज़ करो जदों ये यूज़ करनी है बेटा उदों आप पॉइंट्स नहीं लावांगे। ठीक है उदों फ्रैक्शन वाला यूज़ करांगे तो ईजीली यूज़ हो जाता। नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ I फाइंड आउट करना बेटा अपन पता है तो V इज इक्वल टू IR लगूगा
ओम्स ला लग जूगा। V एप्लाइड वोल्टेज की गल कर रहे हो, गिवन है 20 वोल्ट। आई आप कढ़ना सर्किट दे विचों, पैर च सी पा लो। आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई सी बेटा 80/11, ठीक है जी। ये टोटल करंट है, टोटल करंट फाइंड आउट करनी आपां ये चीज़ करनी पैनी है। 20 इज इक्वल टू आई सी इंटू 80/11, तो आई सी की आ जाऊगा बेटा इतों 20 इंटू 11/80, (11/4 एम्पीयर। ਇਹਦਾ आंसर देता बेटा। ठीक है जी। नाउ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ फाइंड द करंट थ्रू R1 R2 R3, मतलब ਹੁਣ ਉਹ टोटल आई नहीं पुछ रहा, वो I1 I2 I3 पुछ रहा। चलो जी R1 ਦੇ ਉੱਤੇ ओहम्स ला लाओ, ਪਹਿਲਾਂ R1 ਦੇ ਉੱਤੇ ओहम्स ला लाओ बेटा। अपन पता V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू I1 R1, R1 ते ला रहा मैं ये नाल नीचे दे देने ने इन्हां दे, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर R1 की गल कर रहे हैं आप। चलो V1 इज 20 वोल्ट, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V, 20 इज इक्वल टू I1 मैनू नहीं पता बेटा, मैनू I पता सी, टोटल करंट पता सीगा मैनू, पर मैनू I1 नहीं पता जी। I1 मैं फाइंड आउट करना, R1 मैनू पता कितना 10, तो इतों I1 कितना आ गया बेटा जी, I1 आ गया 20/10 इज इक्वल टू हाउ मच 2 एम्पीयर, ठीक है जी। चलो जी जाओ नैक्सट I2 कढ़ांगे बेटा आप। R2 ते ओहम्स ला लाओ, V2 इज इक्वल टू I2 R2, V2 is again 20 is equal to I2, we have to find it out, R2 is 40, तो बेटा I2 आ गया 20/40 1/2 एम्पीयर, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 2 एम्पीयर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ बेटा 1/2 एम्पीयर। थर्ड ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ बेटा जी ਆਪਾਂ, थर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ अगेन V इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू I3 R3 ला दो, V3 is 20, I3 we have to calculate, R3 is 80, तो बेटा I3 आ गया 20/80 1/4 एम्पीयर, तो बेटा I3 आ गया अपने को 1/4 एम्पीयर। टोटल करंट कितना सी 11/4 एम्पीयर। ये इत्थे जाके वंडिया गया, I1 ਨੂੰ अलग, I2 ਨੂੰ अलग, I3 ਨੂੰ अलग। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ बेटा ਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਕੈਨਾਲਸ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਜਾਊ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ। ਦੇਖੋ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 + 1/2 + 1/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11/4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 + 1/2 + 1/4 that is 4, 8 + 1 + 2 + 1। इतों बेटा अपन पता लग गया भी अपना जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी आप ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा ये आप अज पैरेलल बारे सारा डिस्कस कर लिया। पैरेलल दे विच भी सीरीज़ मांगू, ये की है, ये करंट जोड़ा होगा वो अपने कोल वेरी कर जूगा, ठीक है, हरेक रजिस्टेंस के थ्रू। सीरीज़ दे विच वोल्टेज वेरी करती सी, ठीक है। सिंबल्स याद रखियो, अपने माइंड नाल बनाओ तो बहुत ज़्यादा ईजी ने।
1 2 3 लिखना बहुत जरूरी आ बेटा। जिन्ना टाइम तुसी 1 2 3 ते कली सिंपल I1 I2 I3 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंशिएट नहीं ना कर सकते, उन्ना टाइम ना तो थोतों क्वेश्चन निकलन बेटा, ना थोनों स्टेटमेंट समझ आवे। जिन्ना टाइम थोनों ये नहीं पता लगता भी टोटल करंट इन द सर्किट की हुंदा ते किसी एक रजिस्टर दे विच करंट हुंदा जिहड़ा वो की हुंदा। ठीक है जी, तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखना गा। ये एवें नहीं हैगा भी तुसी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो थोनों नाल दी नाल पता लग जूगा, थोनों थोड़ा ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़नी पऊ भी एक्चुअल दे विच पुछ की रहा, वो अपने तो टोटल करंट पुछ रहा जां एक पर्टिकुलर रजिस्टर विचों अपने कोलों करंट की वैल्यू पुछ रहा। ठीक है जी, तो ये अपना पैरेलल दा न्यूमेरिकल इस तरह का ही आऊगा। ठीक है, तो कल नूं आपां करांगे पैरेलल ते सीरीज़ का कॉम्बीनेशन। एक दो सर्किट मैं थोनों होर पा दिना, वो तुसीं करके देख लिओ। ठीक है, तो पैरेलल का बेसिकली इस तरह का ही सर्किट बनूगा, इदों मतलब होर किसी तरह का सर्किट नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो आपां गल करते हैं, मैं थोनों सर्किट पा रहा, तुसीं मैनूं इहदा न्यूमेरिकल फाइंड आउट करके यही 4 चीज़ां फाइंड आउट करके मैनूं आंसर देना गा। ठीक है बेटा, ये क्रॉस मैं वोल्टेज लाई है 40 वोल्ट, डायग्राम भी तुसीं बनाउणी है। ठीक है, तो इत्थे मैं दे रहा इनू बेटा 10 ओहम 60 ओहम 90 ओहम। ठीक है, तुसीं सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके ये वास्ते देना। कई बार वो क्वेश्चन दे विच बोलूगा resistors are connected in a way that current through each resistor varies, तो उत्थे आपां नूं पता लग गया भी करंट थ्रू ईच रजिस्टर वेरी किच करदा हुंदा पैरेलल च, तो उत्थे वो कहूगा डायग्राम भी बनाओ, आप बनाओ। उन्हें हिंट देता आपां नूं, उन्हें की देता हिंट देता दैट रजिस्टर्स आर कनैक्टेड इन सच अ वे दैट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर वेरीज, तो उत्थे आपां नूं उन्हें हिंट देता भी पैरेलल दे विच आ। ठीक है, कई बार वो सीरीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ सकता द रजिस्टर्स आर कनैक्टेड इन सच अ वे दैट करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज इन द होल सर्किट, तो उत्थे अपन पता लग गया बेटा वो किहदी गल कर रहा, वो अपने को सीरीज सर्किट की गल कर रहा। ठीक है, एमयू वोल्टेज नाल भी हिंट दे सकता, वो बोलूगा सर्किट रजिस्टर्स आर कनैक्टेड इन अ वे सच दैट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एज अप्लाइड वोल्टेज। इत्थों भी आपां नूं की पता लग गया भी वो पैरेलल दे विच गल कर रहा। जां फिर वो पुछू रजिस्टर्स आर कनैक्टेड इन सच अ वे दैट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर वेरीज, तो उत्थे भी वो की गल कर गया, वो दी गल कर गया अपने कोल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दी, दैट इज़ सीरीज़ की गल कर गया। तो वो अपने कोलों वो डायग्राम नहीं दे दूगा, कई बार इस तरह भी होगा भी वो डायग्राम नहीं दूगा, जस्ट वो कौन ओबवियसली क्वेश्चन मेकर। ठीक है, तो वो की करनगे बुक्स वाले या फिर कोई भी क्वेश्चन मेकर एग्जाम दे विच की होगा, तो वो इस तरह नाल चीज़ नूं हिंट दे के ट्विस्ट कर देंगे, डायग्राम भी थोनों खुद बनानी पऊगी, तो वो चीज़ां बनाउण लई थोनों पहला बेसिक्स पता होने चाहिए ने। ठीक है बेटा, तो अज लई इन्ना ही, कल नूं मिलते हैं, थैंक यू।